Hello dear students, you know that we are discussing protein synthesis process. Chain initiation process is completed. Now we will talk about chain elongation process. यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो चेन होती है वो उसका elongation यानी उसका दीर्घीकरण यानी वो लंबी कैसे होती है. Here we are going to discuss it. Now, in eukaryotes, we know that there are two types of subunits. Those are related to the ribosomes. Larger subunit and small subunit, those are present. But these both types of subunits are not found in a same way. They found just like this in cytoplasm, freely found. So for the protein synthesis, these both types of subunits combined together in mRNA thread. यानी दोनों की दोनों आपकी जो राइबोसोम सब यूनिट हैं उनको mRNA के पास आना और कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है. इन दोनों सब यूनिट को इस mRNA पर कंबाइन करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज 7-methylated guanosine. 7-methylated guanosine, it play a very important role or recognize the small subunit of the ribosome and combine it with the help of mRNA. जो 7-methylated guanosine होता है उसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल सबयूनिट जो mRNA की होती, स्मॉल सबयूनिट जो राइबोसोम्स की होती है वो mRNA पर क्या होती है, स्टेब्लिश हो जाती है. नाउ व्हाट अबाउट द लार्जेस्ट सबयूनिट? Largest subunit is also combined here with the help of magnesium ions. लार्जर सबयूनिट जो होती है वो भी यहाँ पर कंबाइन होती है किसकी वजह से, मैग्नीशियम आयंस की वजह से. मैग्नीशियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंबाइन द लार्जर सबयूनिट इन दिस mRNA. In this way we can say that the smallest subunit and the largest subunit, they both are combined in mRNA for the protein synthesis process with the help of 7-methylated guanosine and magnesium ions. So these both things are very important. Now after that, in ribosomes, this ribosome have got different types of sites, and these sites play a very important role in protein synthesis or the combining of the charged particle, which is charged tRNA. This ribosome have got different types of sites. These sites are known as P site, A site and E site. P site is called peptidal site, A site is called amino acid site, and the E site is known as exit site, from where the tRNA will came out. Now question is that arise, where these sites are found? Here we have the diagram. This is the structure of ribosome, and this is the largest subunit, this is the smallest subunit. This is 5' 3' mRNA. These are these sites: E site, exit site, P site, peptidal site, and this is the A site, which is known as amino acid site. This is amino acid site. These all three sites are very important. Now the two important things you should have knowledge in the case of protein synthesis in ribosome. What are these two things? First of all, remember that first charge tRNA always attached to the P site. It means first charge tRNA always attached to the P site. जो भी चार्ज tRNA होगा वो सबसे पहले P site पर ही अटैच होगा. Why? Because in front of P site initiation codons are present. जो P साइट होती है उसी के सामने क्या होते हैं, इनिशिएशन यानी कि स्टार्ट करने वाले कोडॉन होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल AUG. अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि AUG इज नोन एज स्टार्ट कोडॉन. So these start codons are present in front of P site. So that's why all types of charged tRNAs, they will attach to the P site. Remember it. Now the another important thing you should have knowledge. After that, all charged tRNA will attach with A site. इसके बाद जितने भी जो चार्ज tRNA होते हैं वो P साइट पर अटैच ना होते हुए वो A साइट पर अटैच होंगे. Why? Because AUG कोडॉन विच इज नोन एज अ स्टार्ट कोडॉन ने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए tRNA को यहाँ पर अटैच करना स्टार्ट कर दिया है. अब वो tRNA क्या करते हैं, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से यानी कि सीक्वेंस वाइज ए साइट पर आते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन बनती चली जाती है. सो दैट्स वाई आफ्टर दैट
ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज tRNA विल अटैच विद ए साइट, वो ए साइट पर ही अटैच होंगे. With the help of diagrammatic representation, we will discuss here. Look here. This is 5 prime 3 prime mRNA. Here we have E site, exit site. Here we have the P site, and this is the A site. This is known as charged tRNA. Why this is charged tRNA? Because it have got amino acid. Clear? This tRNA is attached here because here the starting codon, which is known as AUG. AUG is present here. Clear? After that, whenever the another types of nitrogenous base will attach here, दूसरा nitrogenous base अगर यहाँ पर A साइड पर आएगा, now it came here, A साइड पर ये दूसरा nitrogenous base charge tRNA यहाँ पर आ चुका है. Now here E site, here we have got P site, last one here we have A site. Whenever the other type of charged tRNA attach to the A site, then these both types of amino acid, they both combine together with the help of a bond which is known as पेप्टाइड बॉन्ड. दो तरह के अमाइनो एसिड जो होते हैं, दोनों अमाइनो एसिड में से एक में से कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे में से अमाइड ग्रुप NH2 ग्रुप, दोनों आपस में कंबाइन होकर के पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम विच इज़ नोन एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रयास में ये क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड बना देते हैं. दिस बॉन्ड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन को बनाने में यही जो बॉन्ड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ अनदर टाइप्स ऑफ वेटिंग tRNA आर प्रेजेंट हियर. जो वेटिंग में जो चार्ज tRNA है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं. वो इंतज़ार करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर ए साइट पर अटैच हो जाएं. बट ए साइट पर ये चार्ज tRNA अटैच नहीं हो सकते. क्यों नहीं अटैच हो सकते? क्योंकि ए साइट के कंबाइन ए साइट पर कोई भी चार्ज tRNA के आने के बाद वो ए साइट पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है. वहाँ पर कोई भी चार्ज tRNA दूसरा एंट्री नहीं कर सकता है. तो इस ए साइट का हमेशा खाली होना बहुत ज़रूरी है. अब इस ए साइट के खाली होने के लिए क्या होगा, जो दूसरे आपके चार्ज tRNA हैं उनको ई साइट पर शिफ्ट होना पड़ेगा और ई साइट के जो चार्ज tRNA हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा. ध्यान से देखिएगा, ये जो वेटिंग में चार्ज tRNA है ये ए साइट पर तभी आ सकता है जब ए साइट के चार्ज tRNA आपके ई साइट पर सेटल हो जाएं और ई साइट के जो चार्ज tRNA हैं वो बाहर निकल जाएं. दैट्स वाई द ई साइट इज़ नोन एज एग्जिट साइट. ई साइट हम एग्जिट साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर से चार्ज tRNA आपके बाहर आ जाते हैं. क्लियर? रिमेंबर इट. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं और अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज tRNAs. One tRNA is also found in the waiting list. Clear? All charge tRNA have got their codons. Now mRNA have got their mRNA have got their codons and tRNA have got their anticodons. Why these are known as charged tRNA? Because they have their own amino acid, and these amino acids are combined with the help of peptide bonds, and these peptide bonds play a very important role to make a polypeptide chain. Further they convert into the amino acid, and amino acid further convert into the protein. So whenever these waiting charge whenever these p side a side charge tRNA, ये a side हो गई आपकी और ये वाली p side हो गई. ये a side वाली जो चार्ज tRNA है यहाँ पर, ये जब आपके p साइड पर चले जाएंगे और p साइड वाले चार्ज tRNA यहाँ से एग्जिट फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और लंबी चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे, तभी वेटिंग पर बाहर प्रेजेंट जितने भी आपके चार्ज tRNA हैं वो क्या करेंगे, ए साइड पर कंबाइन हो सकते हैं. अदरवाइज दे कांट कंबाइन. ए साइड का खाली होना इसलिए बहुत ज़रूरी है. सो नाउ आफ्टर दैट देर इज़ अ whenever this whole process takes place in ribosome, राइबोसोम में जब पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है, दिस राइबोसोम यूनिट लोकेटेड इनटू 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन. ये जो राइबोसोम की जो यूनिट होती है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन पर ही क्या होती है, सिचुएटेड होती है. दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन डायरेक्शन.
ये पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन डायरेक्शन कहते हैं, रिमेंबर इट। नाउ विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द चेन, यानी अब कौन से फैक्टर जो होंगे वो चेन टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द चेन टर्मिनेशन प्रोसेस। चेन टर्मिनेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ पर से चेन टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी कोई ऐसा टीआरएनए यहाँ पर आ जाए जिसके पास स्टॉप कोडॉन्स हो। स्टॉप कोडॉन के बाद यहाँ पर क्या होगा, कोई भी चार्ज टीआरएनए यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉप कोडॉन क्या कर देंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देंगे। हियर वी हैव, in the case of chain termination, chain elongation process will continue till then when stop codons is not coming। जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आएंगे जो आपकी चेन इलोंगेशन प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, यानी प्रोटीन की लंबी चेन बनती रहेगी। सो इफ स्टॉप कोडॉन्स ए यू ए जी एंड यू जी ए विल कम दैट पोर्सन, देन चेन फॉर्मेशन विल स्टॉप, तभी चेन फॉर्मेशन क्या होगा, आपका स्टॉप होगा। These stop codons have not any types of anticodons. It means they do not show any types of amino acid। जो भी स्टॉप कोडॉन यहाँ पर आएगा उसके पास कोई भी क्या होगा, अमीनो एसिड कोई भी किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो। अगर वो किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। क्लियर। सपोज फॉर एग्जांपल हियर वी हैव द स्टॉप कोडॉन्स आर यूएए। अगर यहाँ पर स्टॉप कोडॉन यूएए आ जाता है तो इसका एंटीकोडॉन बनेगा ही नहीं, एंटीकोडॉन नहीं बनेगा तो कोई भी चार्ज टीआरएनए यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता है। इस तरह से क्या होगा, नाउ द रिलीजिंग फैक्टर विच इज नोन एज ERF1, यानी कि यूकैरियोट रिलीजिंग फैक्टर F1, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द चार्ज टीआरएनएज के कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए ये जो फैक्टर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी चार्ज टीआरएनए और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना रहता है इसको ब्रेक करने के लिए ये फैक्टर ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर दैट इस फैक्टर के कारण ये क्या होता है, द होल चेन विल सेपरेट, पूरी की पूरी चेन आपकी सेपरेट हो जाती है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपका देखिए स्टॉप कोडॉन हो गया, स्टॉप कोडॉन के आने के कारण कोई भी यहाँ पर आपका टीआरएनए क्या हो सकता है, चार्ज टीआरएनए अटैच नहीं हो सकता। चार्ज टीआरएनए अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज टीआरएनए और पॉलीपेप्टाइड के बीच में आपका रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर एक पूरी की पूरी चेन को ब्रेक डाउन कर देगा, तो पूरी की पूरी जो चेन है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन वो यहाँ से अलग हो जाएगी। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज प्रोटीन चेन। इस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस पूरे के पूरे सेगमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के लिए हमने दो तरह की आपके दो स्टेप्स पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या करा, प्रोटीन सिंथेसिस में हमने चार्ज चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन तीनों के तीनों स्टेप्स पढ़े थे। इस तरह से पूरी की पूरी जो है लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की वो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है।